મોટો ચિંતાનો વિષય છે। આજ સુધી તો જે ભ્રમણ ચાલ્યું તે ચાલ્યું, કલ્પી ન શકાય એવા દુઃખો આપણે વેઠ્યા। ભગવતી સૂત્ર એમ કહે છે કે આપણો આત્મા સાતે નરકની અંદર અનંતી વાર જઈને આવ્યો છે। આ તો આપણને આપણો ભૂતકાળ યાદ નથી આવતો, એટલે અત્યારે આપણે નિશ્ચિંત અને નિષ્ઠુર થઈને બેઠા છીએ। ગોન ઇઝ ગોન, ભાઈ તો બધું પતી ગયું, જે થયું એ થયું। અત્યારે આપણે અહીંયા આવ્યા છે, મોજ મજા કરો। Eat, drink and be merry, tomorrow you shall die। આ જ સૂત્રને અપનાવીને આપણે આપણું જીવન જીવી રહ્યા છીએ। પણ આખો સંસાર બહુ દુઃખમય છે, આખો સંસાર ત્રાસમય છે। એની અંદર સુખનું નામ નિશાન પણ નથી। પંચસૂત્રકાર એમ કહે છે, દુઃખ રૂએ દુઃખ ફલે દુઃખાણું બંધે। સાકરને કોઈ પણ બાજુથી તમે ચાખો કેવી લાગે? મીઠાને કોઈ પણ, નમકને કોઈ પણ બાજુથી તમે ચાખો કેવું લાગે? લીમડાને કોઈ પણ બાજુથી તમે ચાખો કેવો લાગે? કડવો ને કમળો લાગે। એમ સંસારને કોઈ પણ બાજુથી અનુભવવાની કોશિશ કરો કેવો લાગે? હવે કોઈ નહીં બોલે। તમને કદાચ ખબર નહીં હોય, સાપનું ઝેર જેને ચડેલું હોય એને કડવો લીમડો પણ મીઠો લાગે। પીળિયો થયેલો હોય એને સફેદ વસ્તુ પણ પીળી લાગે। એમ જેને મોહનું ઝેર ચડેલું હોય એને કડવો, અસાર અને ત્રાસદાયક અને દુઃખદાયક એવો પણ સંસાર મીઠો લાગે। કડવો લીમડો જ્યારે મીઠો લાગે, આંખ મીચીને તમે કહી દેજો એને સાપનું ઝેર ચડ્યું છે। સફેદ વસ્તુ પણ જ્યારે પીળી લાગે, આંખ મીચીને તમે કહી દેજો એને પીળિયો થયો છે। बहुत मजा है संसार में। आओ જ્યારે જેને અનુભવતા લાગે, दिवाली आई, घूमने गए, 5 स्टार होटल में घूमे और जलसा किया, આ મજા લાગે ત્યારે સમજવાનો કે મોહનું ઝેર ચડેલું છે। જે સંસાર કડવો છે, જે સંસાર દુઃખમય છે, જે સંસાર ત્રાસમય છે, એ સંસાર પણ જ્યારે મીઠો લાગતો હોય, અનંત તીર્થંકર પરમાત્માએ કીધેલું હોય, જાતે અનુભવેલું હોય, લાત મારીને નીકળી ગયા હોય, એ સંસાર પણ જેને મીઠો લાગે ત્યારે સમજવાનું કે આપણને મોહનું ઝેર ચડેલું છે। અને આ મોહનું ઝેર ઉતારવા માટે આખી સાધનાની પત્તાર ભગવાને બતાવેલી છે। સાધના શેના માટે છે ભાઈ? कोई भी पाप करो, मोह का झेर उतारने के लिए है। कोई पण भक्ति करो, कोई पण स्वाध्याय करो, ब्रह्मचर्य पाळो, तपस्या करो, त्याग करो, स्वाध्याय करो, कुछ भी करो, अंतिम लक्ष्य अपना यही होना चाहिए, मारू मोहનું ઝેર ઓછું થવું જોઈએ। હું તમને કહું, દૂધની અંદર છે ને સાકર ઓછી હોય તો ચાલે, પણ એસિડ તો ન જ જોઈએ। શાકની અંદર કદાચ મીઠું ઓછું હોય તો ચાલે, પણ એની અંદર ઝેર તો ન જ જોઈએ। સાધના કદાચ ઓછી વધતી ચાલે, પણ મોહનું ઝેર તો ભરેલું હોવું જોઈએ જ નહીં। આપણી મૂર્ખતા તો ઈ છે કે સાધનાના ક્ષેત્રમાં પણ મોહ પોતાનો સકંજો જમાવીને બેસે છે। સંસારના ક્ષેત્રમાં તો ચારે બાજુ મોહ છવાયેલો છે, પણ ધર્મ ક્ષેત્રમાં પણ મોહ। મંદિરમાં જાય, ભગવાનની સામે દ્રષ્ટિ સ્થિર કરવા કરતા ભગવાનની નિર્વિકાર દશા જોવાની છે। આપણે ત્યાં ભગવાનની સાથે એક તાન થવાનું છે, એને બદલે મંદિર में जाकर कौन आया कौन गया और ये हमारी बहना माँ અને કઈ સાડી પહેરી છે, કયો દાગીનો પહેર્યો છે, होता है कि नहीं होता है? अगर वहां जाती है कि नहीं जाती है? ये भी मोह है अपना। चैत्य वंदन भाष्य में कहा है, मंदिर में प्रवेश करने के बाद कहीं भी देखना नहीं है। 3 दिशी निरीक्षण वज्जई, 3 दिशाओं का त्याग करना है। न इधर देखना है, न इधर देखना है, ना पीछे ना ऊपर ना आगे पीछे, कुछ नहीं। कौन आया कौन गया, किसी ने क्या पहना है, कपड़े गहने कुछ नहीं।
मैं भला मेरे भगवान भले। मेरी आंखें भगवान की आंखों के अंदर, बाकी कुछ नहीं थी। दिसी निरीक्षण बच्चे एक 50 साल में एक बार भी ऐसे दर्शन किए हैं? संकल्प के साथ आप कभी अंदर गए हो? आज मंदिर में मैं प्रवेश करता हूँ, मैं भला मेरे भगवान भले। एक दिन भी ऐसा गया मंदिर में जाने के बाद, कौन आया कौन गया मुझे पता नहीं, ऐसा एक दिन भी गया? भगवान कैसे है, मुकुट था कि नहीं था वो पता नहीं, लेकिन कौन आया कौन गया एक्यूरेट पता है। क्या हम भगवान के दर्शन करने जाते, लोगों के दर्शन करने जाते? मैं इसलिए कहता हूँ थोड़ा करो, अच्छा करो, बेस्ट करो, शुद्ध करो, उपयोग से करो, भाव से करो, विधि से करो, और फिर देखो थोड़े की ताकत कितनी है। सालों साल तक भगवान की पूजा कोई भाव नहीं जपते हैं, ना कोई विधि, ना कोई सिद्धि शुद्धि, ना कोई उपयोग, कुछ नहीं, बस करके आ गए। जैन है, पूजा का नियम ले रखा है, बस जाके आ गए। एक केरी का रस भी खाते हो ना, तो आधे घंटे तक उनका रसा स्वाद चलता है कि नहीं चल रहा है? मजा ही आज केरी का रस खाने। मूवी देखकर आते हो, आधे घंटे तक तो उसकी असर माइंड में घूमती है। क्या मूवी थी, चोरी ऊपर से ना चोरी। मूवी देखना तो पाप, अनुमोदना करना महापाप, प्रशंसा करना महापाप। क्या मूवी थी, घूम के आए स्विट्जरलैंड, बाप रे बाप क्या ग्रीनरी, चोरी ऊपर से ना चोरी। आपको पता नहीं है जैन दर्शन क्या है। ये सेंटेंस बोलते बोलते यदि आपके आयुष्य का बंद पड़ जाए ना, पड़ सकता है कभी भी। चाहे स्विट्जरलैंड की ग्रीनरी देखी, चाहे कुछ भी अच्छे देखे और उसकी अनुमोदना कर ली, प्रशंसा कर ली, उसी वक्त आयुष्य का बंद पड़े। वही स्विट्जरलैंड की ग्रीनरी में पैदा होने का आयुष्य बंद पड़ता है। डराता नहीं हूँ आपको, शास्त्र में जो लिखा है वो कहता हूँ। देवलोक में देवता देवी देवता भी घूमने जाते हैं, वन उपवन में, सरोवर में स्नान करने जाते हैं, और स्नान करते करते वाव 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 वो भी करते हैं, कितना अच्छा, कितनी मजा, कितना शानदार। और उसी वक्त यदि उनका भी आयुष्य बंद पड़ता है, वही पानी में उनको जन्म लेना पड़ता है, वही वनस्पति में उनको जन्म लेना। जैन दर्शन है। भूल चाहे कितनी भी छोटी हो, परिणाम रिजल्ट खौफनाक होता है। हर पल कीमती है। सोचो हमारी एक पल की ताकत है, मोक्ष भी हथेली में कर दे, और एक पल की ताकत है सातवीं नरक भी हथेली में रख दे। क्षणेन सप्तमीं याति क्षणेन मोक्षमेव वा। सुनिए कहानी आपने प्रसन्न चंद्र राजर्षि की। श्रेणिक महाराजा ने जब भगवान को, अभी तो महाराज साहब को मैंने देखा, धूप में खड़े थे, एक पैर खड़ा था, हाथ लंबे थे, सूरज के सामने दृष्टि थी। लगा ऐसा कि अभी जो इसका काल धर्म हो तो सीधे मोक्ष में चले जाए। परमात्मा को पूछते हैं महावीर देव को, अभी काल धर्म हो तो ये महात्मा कहाँ जाए, मुझे खरी करनी है। भगवान ने कहा हमना मरे तो सातवीं नरके जाए। देखो कहानी तो सुनी होगी, लेकिन मैं थिंकिंग डीप थिंकिंग कहता हूँ। पूजा के कपड़े पहने हैं ना, तो पूजा के मंदिर में, भगवान के मंदिर में, पूजा के कपड़े में यदि आपके बारे में प्रश्न पूछा जाए कि अभी तो मंदिर में है भगत,
भक्ति के भाव में ही हो गए, परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा के तैयारी में है। और कोई पूछ ले केवल ज्ञान, अभी मरे तो कहाँ जाए, कह सकते हैं स्वर्ग में जाए। मानस क्या छे एનું મહત્વ નથી, માણસનું મન ક્યાં છે, માણસના વિચારો ક્યાં છે, એના ઉપર કર્મ બંધ છે। શરીર ભલે ને ગમે ત્યાં હોય, તમારા મન તમારા વિચારો જ્યાં રખડે છે એવો કર્મ બંધ થાય। कितना कॉन्ट्रास्ट। साधना की सर्वोच्च भूमिका में थे प्रसन्न चंद्र राजर्षि और दुर्गति की सर्वोच्च अवस्था में जाने की तैयारी थी। सुनो, सोचो बात। साधना की सर्वोच्च अवस्था थी, सूरज सामे दृष्टि लगाई, एक पैर खड़ा था, एक पैर पे खड़े थे, एक पैर नीचे था, एक पैर खड़ा था, हाथ नीचे थे, बाहु बेव नीचा करी, सूरज सामे दृष्टि लगाए। कोई अगम्य मेडिटेशन में निमग्न थे। बहुत मजे की बात है। प्रतिक्रमण हो, संवत्सरी का हो, साल में एक बार 160 नौकार। ओ देखो भी थक जाएंगे। मंदिर से बाहर आने के बाद कोई मफतलाल मिल जाए और आधा घंटा खड़े खड़े पंचायती करनी हो, तब पैर नहीं दुखते हैं। और कावसक करना है तो पैर दुख में दिखते हैं। क्या कहे, मनड़ू कीमा ही ना बाजे। साधना की सर्वोच्च भूमिका, इसके आगे कुछ नहीं। मेडिटेशन की मुद्रा है, खुली मेडिटेशन में है, कष्टमयी साधना है, बाहरी कष्ट भी पराकाष्ठा का है, लेकिन अंदर क्या चलता है वो अंदर की आत्मा ही जानती है। कितने भी साधक अवस्था में हो, कितने भी सज्जन दिखते हो, महान दिखते हो, धर्मात्मा दिखते हो, संस्कारी दिखते हो, लेकिन अंतर की गत अंतर जाने। अगर किसी ने कह दिया हो बहुत दानवीर हो, बहुत भगत हो, बहुत परमात्मा की अच्छी भक्ति करते हो, बहुत क्रियाकारक हो, सामायिक पौषध प्रतिक्रमण खुला न समाये, अंतरात्मा को पूछ लेना मैं खुद कैसा हूँ। ये तो आउटर सेल है, मेरा इनर सेल कैसा है वो तो देखो। लंबी साधना करनी आसान है, गहरी दीर्घ साधना करनी, उग्र साधना करनी, भीष्म साधना करनी भी आसान है, लेकिन ये मोह को जीतना और आत्मा को निर्मल करना बहुत कठिन है। बाहर से अच्छा दिखना बहुत आसान है, अंदर से अच्छा बनना बहुत कठिन है। और आप टारगेट नहीं रखोगे बाहर से कोई प्रशंसा करे या ना करे, ये अंदर से अच्छा बनना है। अंदर से यदि मेरी मानसिकता घटिया है, बाहर कितनी भी प्रशंसा क्यों ना हो, मुझे कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। और अंदर से मैं निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ, बाहर से कोई प्रशंसा न भी करे, डिफेम भी करे, अपमान भी करे, कुछ नहीं, मुझे क्या लगता है अंदर से मैं शुद्ध हूँ। सही है कि नहीं है? पराकाष्ठा की साधना देखने वाले भगवान को पूछे तो हमणा मरे तो 7મી नरके जाए। આપણે ક્યાં છીએ એનું મહત્વ નથી, આપણું મન ક્યાં છે અને આપણા વિચારો ક્યાં છે એનું મહત્વ છે। પરિણામ, કર્મ, બંધ, રિઝલ્ટ આપણા વિચારો ઉપર છે।
વિચારોના કોઈ ઠેકાણા નથી. સામાયિકમાં આવો ને ઘરમાં કોઈ કૂતરું ઘસી જાય તો सामायिक में हो, समता भाव में हो. सामायिक में हो, घर में कोई भी थर्ड पार्टी हो ने જરાક બાજુમાં પડોશમાં ગઈ હોય અને એ જ વખતે ગેસ ઉપર મૂકેલી ચા કે દૂધ ઉભરાતું હોય તો મૌન રાખો ને તમે. સામાયિક બી સચવાય ને કામ બી થાય. सामायिक किसे कहते हैं? साधना का मर्म न जानते हैं, न जानने का प्रयास करते हैं. गतानुगति की आंतरिक क्रिया करते रहते हैं, आत्म संतोष मानते रहते हैं. मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया. सालों साल भी चले जाए, अंदर से कोई परिवर्तन न हो मानसिक. क्या करने की ये क्रिया को? दिवाली आती है, સરવૈયું કાઢીએ છીએ ભાઈ, ગઈ સાલે આટલો પ્રોફિટ હતો, આ સાલ કેટલો છે? निकालते हो कि नहीं निकालते हो? 50 लाख का प्रॉफिट था, ये साल 75 लाख होना ही चाहिए. होता है कि नहीं होता है? कितना ज्यादा मुनाफा, क्या सब निकालते हो कि नहीं निकालते हो? एक साल के बिजनेस की हम मुनाफा क्या, नुकसान क्या, नफा नुकसान ये निकालते हैं. सरवैयू एक साल में साधना, आराधना, विराधना का कोई सरवैया निकालने का विचार हमें आया क्या? गत वर्ष में इतना क्रोध था, अब इतना कम हुआ. गत वर्ष में साधना के भाव इतने थे, आज और बढ़ गए. निकाला कभी? सोचे भी सही कि साधना का सरवैया, आराधना विराधना का सरवैया निकालना चाहिए. जब टारगेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर विकास कैसे होगा? बस सब गतानुगतिक वही रफ्तार से चलता है. समय ही नहीं साधना का. छोटे बच्चे को भी पूछे, हम बस एक ही 5 साल का, और मम्मी इतनी छाती सीना खुला, महाराज साहब એને તો 1 મિનિટનો ટાઈમ જ નથી. फिर रिकॉर्ड चालू हो जाती है, इतने से इतने बजे तक स्कूल है, इतने से इतने बजे ट्यूशन है, फिर ये कराटे क्लास है, वो क्लास है, वो क्लास है, डांसिंग क्लास है, फलाना ढीकना, बात फिनिश. यहाँ कोई हमारी भगवान, हमारे भगवान की पूजा, साधु महाराज साहब, साधु महाराज को वंदन, उनको विनंती, कोचरी पानी लाना, पाठशाला. महाराज साहब टाइम ही नहीं है. क्या होता होगा हमारा ये सुनकर? आपको गर्व फील होता होगा. क्या होगा हमारे शासन का? ज्यादातर बच्चे कॉन्वेंट में, जन्म से संस्कार, मंदिर के बाहर भिखारी खड़ा था. एक सेठ वहां से गुजरे, सुनी होगी टेप रिकॉर्ड. सेठ कहीं आपो ने 4 दिवस नो भूखो छू, हमसे तो बिजनेस बढ़ाए. अभी सुना एक भिखारी के वहां से 90 लाख रुपए निकले. शानदार बिजनेस, विदाउट एंडेवर, कोई प्रयत्न नहीं, कोई मेहनत नहीं. हाथ फैलाया, जोड़ी भर गई. सेठ भी थोड़े पक्के थे. साला वो लट्ठो पट्ठो छे, जुवान छे, भीख मांगता शर्म नहीं आती, कहीं काम कर, काम कर. तो भिखारी ने बोला, सेठ आपकी बात सही है, लेकिन आ भीख मांगवा मांथी ऊंचो आवू कहाँ तो काम करूं ने.
આખી વાત છે. અમે અમારા સંસારના કામમાંથી ઊંચા આવીએ, માનવામાંથી, ગણવામાંથી, પંચાયતમાંથી, વ્યવહારોમાંથી, આવવા જવામાંથી, લેવા દેવામાંથી ઊંચા આવીએ તો કોઈ ધર્મની સાધના કરીએ ને ભિખારી જૈસી વાત હે. તમને એમ લાગે છે કે આપણે બાવસીને છેતરીએ છીએ, પણ તમે તમારા પગ ઉપર કુહાડો મારો છો. અહીંયાથી ગયા પછી અહીંયા તો અમે ઠીક છે ભાઈ, બિચારા દયાને પાત્ર છે, કર્માધીન છે, જેને પોતાના આત્માના હિતની કોઈ ચિંતા નથી, આત્માના હિત માટેનો કોઈ પ્રયત્ન નથી, અને આવી બાનાબાજીઓ કરી અને પોતાના હિતમાંથી છટકી જાય છે. અહીંયાથી તો કદાચ છટકશે, પણ ઉપર ક્યાંય છટક બારી નહીં મળે. ઇગ્નોરન્સ ઇઝ નોટ એક્સક્યુઝ. અહીંયા તમે અમને સમજાવી શકશો, ઉપર જ્યાં વારો આવશે, ફાઇનલ રેકરિંગ થશે, ચિત્રગુપ્ત હિસાબ માંગશે, ભાઈ અમને તો નીચે આરાધના કરવાનો કોઈ ટાઈમ જ નતો મળ્યો, તો જાઓ આ નરકના દ્વાર ખુલ્લા છે તમારા. નહીં, હસને की बात नहीं है, रियलिटी है. અહીંયા અમને બબૂચક બનાવી શકશો, અહીંયાથી છૂટી શકશો, અહીંયા તમે તમારી જાતને તમે હોશિયાર માની શકશો, પણ બધું અહીંયા છે. અને યાદ રાખજો, આવી બાનાબાજી બંડલબાજી કરીને તમે તમારા પગ ઉપર કુહાડો મારો છો. પેલો આત્મા હોય કે પેલો સંસાર હોય, સંસારનું કામ પહેલા આવ્યું, કોઈ વ્યવહારનું કામ પહેલા આવ્યું, કોઈ સગાવાલાનું કામ પહેલા આવ્યું, અને કોઈ ભગવાનનું કામ, ગુરુનું કામ, સાધનાનું કામ, આરાધનાનું કામ હોય. બેમાં પ્રાયોરિટી કોને આપો તમે? બહુ વિચિત્ર વાત. તમારા મગજમાં એક ભૂસું છે, સંસારનું કામ તો કરવું જ પડે, સંસારના વ્યવહારમાં તો જવું જ પડે, કેમ કે સંસારમાં રહેવું છે, આપણે જઈશું તો કોઈક આવશે. અને ધર્મનું કામ, ગુરુનું કામ, ભગવાનનું કામ, આરાધનાનું કામ નહીં કરીએ તો ચાલશે. બધાના મગજની અંદર આ પ્રેક્ટિકલી ઘૂસેલું છે. નહીં કરેંગે તો ચલેગા. અને એક પણ વ્યવહારમાં કોઈનું મૃત્યુ હોય, કોઈના વ્યવહાર, કોઈની ગમે તે હોય, ક્યાંય જવાનું ટાળતા નથી. ધર્મની વાત આવે ત્યારે બધી બાનાબાજી આગળ કરવાની. ક્યાંય આ બાનાબાજી તમને બચાવશે નહીં. બહુ જ દુઃખમય છે, ત્રાસમય છે. હું તમને કહું છું, સંસાર. કાલે પણ મેં વાત કરી હતી અમારા મહારાજ સાહેબને, રાતોરાત બધા હડકા ગળી ગયા. કાલે પરિવાર આવ્યો વંદન કરવા માટે. મહારાજ સાહેબ સાબરમતીમાં 30 વર્ષની એક બેન, 3 વર્ષનો છોકરો, 10 દિવસ દિવાળીમાં ફરીને આવ્યા. અહીંયા આવ્યા પછી ત્રીજે દિવસે 3 વર્ષના દીકરાનો જન્મ દિવસ સેલિબ્રેશનની સરસ મજાની તૈયારી મમ્મી કરતી હતી. કાલે સવારે જન્મ દિવસ છે અને આજે રાતના 30 વર્ષની આ બેન તૈયારી કરતી હતી. હોશે હોશમાં આમ ઢળી પડી. કેટલી વાત અભી કી વાત હે. હું આ બધી દાખલાઓ મને જે સાંભળવા મળે છે હું ચોંકી જઉં છું, અને તમને ચોંકાવવા માટે કહું છું કે નિરાતે બેસી ન રહો. Anything can be happen at any time. Be ready, be aware, be alert. પડી આજે પણ એ બેન વેન્ટિલેટર ઉપર છે. અશોકજી, શું છે સંસાર? એ ટાઈમે શું થાય કહેવાયું? અને આપણે એ જ આપણી મસ્તી, ખાવું પીવું, મોજ મજા, નિંદા કુતરી, પંચાતો, પ્રમાદો, આનાથી ઉપર આવવું જ નથી. આપણે કોઈ ભય જ નથી, સંસારનો પરલોકની કોઈ ચિંતા જ નથી. એટલો બિહારનો સંસાર. 3 साल का बच्चा मम्मी 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 करके रो रहा है, मम्मी वेंटिलेटर पर है. ये तो कुछ नहीं है, शास्त्रों ની અંદર સંસારની જે ભયાનકતાઓ બતાવી છે
શ્રીરામ સૂત્રની અંદર નરકની જે વેદનાઓ બતાવી છે એ વાંચતા વાંચતા આપણું હાજા બગડી જાય. ભગવાન હવે તો મારે એક પણ પાપ કરવા નથી, કોઈની નિંદા કુતલી અપમાન કરવા નથી, કોઈને હલકા ચિતરવા નથી, કોઈને ઉતારી પાડવા નથી, કોઈને બદનામ કરવા નથી, કોઈને દુઃખી કરવા નથી, કોઈને જલન બાળવા નથી. 1 મિનિટ માટે તો થઈ જાય, પણ પાછા બીજી મિનિટે જુઓ છો ને તમે મહેમાનને મૂકવા જાઓ છો કે નથી જતા? મસાનમાં જાઓ છો કે નથી જતા? બળતી ચિતાને જોવો છો કે નથી જોતા? एक पल हो जाता है, अरे बाप मुझे भी यहाँ आना पड़ेगा, चीता पे बैठना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, यहाँ से रवाना होना पड़ेगा. एक पल हो जाता है. જેવા સ્મશાનમાંથી બહાર આયા એટલે ક્યાંય દેખતે નહીં હો, બહુ વાલા છો, બહુ પ્યારા છો. અહીંયાથી પ્રાણ પંખેરું જે મિનિટે ઉડે છે ને, सज्जाई कारो ने कहा ऊंचा के मंदिर माड़िया सोड़ा वाड़ी ने. तो फिर बोलो अभी आप जोर से. ताजमहल जैसे मंदिर बनवा दिए, BMW गाड़ी लाए, बस मौज मजा. टाइम ब्रीफ हो गया, चला गया हंसला. और देखो कितने प्यारे थे परिवार वाले, जेना विना एक घड़ी न चालतु. कितने मुकर जाते हैं थोड़े ही टाइम में. देखते हो ना, सुनते हो ना, जाते हो ना मतकाल के फंक्शन में. 1 घंटा भी लेट हो, आ रहा है. अरे भाई जरा देखो, कोई शर्म नहीं, कोई उसका. सब अपनी अपनी सोच है. लेट होता है, लेट होता है. काढ़ो ने कहूं कहे जाने जन्म्यो जन्मो क्या એવી બે ઇજ્જતી કહેવાય. જેણે આપણને 30-40 વર્ષ સુધી રાખ્યા હોય, પાળ્યા હોય, પોસ્યા હોય, ખવડાયા હોય, પીવડાયા હોય, સુખ આપ્યું હોય, મોજ મજા કરાવી હોય, એ વ્યક્તિ જ્યારે વિદાય થાય એટલે જાણે કંઈ થયું જ નથી. બહુ આમ ચાઇનીઝ આઈટમ તૂટી ગઈ હોય એવી કઈ વાંધો નહીં. અને આગે વળકે ઉંમર નાની હોય તો મસાણમાં બીજું નક્કી કરી નાખે. एक बात सूत्र याद रखो, दुखा रोए दुखा पले दुखानु बंधे. मैंने बोला शक्कर का स्वभाव मीठा है, नमक का स्वभाव खारा है, नीम का स्वभाव कड़वा है, वैसे ही संसार का स्वभाव दुखमय है. परमात्मा ने स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई है. कोई भी छोर से यदि संसार को चूसने जाओ, स्पर्शने जाओ, अनुभव करने जाओ, आपको दुख ही दुख मिलेगा. थोड़ा सुख दिखता है, वो भी क्षणिक है, तकलादी है, आभासिक है, आज है और कल नहीं है, उसका असल स्वरूप नहीं है. कहा जाता है कि જેનો અંત ખરાબ એનું બધું ખરાબ. શું કહેવાય? શું કહેવાય? आगे कितनी भी अच्छी हो, अंत खराब એટલે एक आदमी है जीवन भर अच्छी तपस्या साधना धर्म किया, लेकिन अंत में कोई भूल भी हो गई, किसी के रुपये दबा दिए, धंधे में नुकसान कर दिया. होते बहुत सारे संस्था के ट्रस्टी भी होते, धर्मात्मा भी होते, प्रमुख भी होते, क्रियाकारक भी होते, लेकिन ऐसी कुबुद्धि सूझती है, ऐसा कोई कर्म. ये दुर्बुद्धि बोलो ना, कर्म क्यों बोले? लोगों के 5-15 करोड़ दबा के बैठ जाते हैं लोग.
આવો ધર્માત્મા, આટલી સંસ્થાનો ટ્રસ્ટી, 2-2 કલાક પૂજા કરનારો અને બધાને ડબ્બામાં લઈ લીધા 25-50 કરોડમાં। 70 साल की उम्र है और फिर आगे की हुई 50 साल की सब साधना के ऊपर पानी फेर जाता है कि नहीं फेरता है? अंत खराब है नु बद्धो खराब। चाहे पैसे का घोटाला हो, चाहे कैरेक्टर का घोटाला हो, चाहे फिजिकल कोई डिसीज आ जाए, 1 साल 2 साल कोई कैंसर हो गया, पीड़ा में जालिम पीड़ा हो, भले पूरी जिंदगी मौज मजा की, लास्ट में 1 साल 1.5 साल कैंसर आ गया, क्या करें? अंत खराब है नो, बोलो 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 थोड़ो, अंत खराब एनु बधु खराब। एवी रीते गमे तेटलो सारो देखातो एवो पण आ संसार अंते खराब ज छे, माटे खराब ज छे। समझो, आवा खराब, आवा दुखमय, आवा त्रासमय संसारनी अंदर साधना एक ज सार छे, केम के साधना द्वारा आ दुखमय संसारमांथी छुटकारो थई शके छे। भगवान के शासन में बहुत सारे योग आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की निर्मलता के लिए, ये दुख से निजात पाने के लिए बहुत सारे योग बताए हैं। जो योग में आपकी रुचि हो, चाहे भक्ति हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे संयम हो, चाहे तप हो, चाहे त्याग हो, कुछ भी, चाहे ज्ञान हो, शील, कोई भी योग में आपकी तसल्ली रुचि हो, वो योग में आप लग जाओ। योग आपको बचाएगा, साधना आपको बचाएगी। साधना से पुण्य का बफर स्टॉक होगा और वही फ्यूचर में कवच बनकर अपनी सुरक्षा करेगा। समझ में आती है बात? भारे कर्मी आत्मा ने 70 वर्ष पण वैराग्य जागतो नहीं। कई इतने ऐसे लोग ज्यादातर देखे 70 में 75 वर्षे लग्न में जवू छे, रिसेप्शन में जवू छे अने नाचवू छे, ये क्या? कोई ने कोई तो उम्र होती है कि नहीं? वही रफ्तार 35 साल में जो करते थे 70 साल में भी वही करना है। रघुवंश काव्य में कहा है, वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम। 50-55 साल हो गए, बस अभी आपका जीवन मुनि वृत्ति जैसा होना चाहिए। एक ही लक्ष्य, पैसा इकट्ठा कर लूं, सुख भुगत लूं, बस बात, दुनिया जाए जन्नत में। सेल्फ सेंटर, यह हमारी मानसिकता हमें कहाँ ले जाएगी? साधना के कोई लेशिया नहीं। परमात्मा ने बताए हुए तत्व पे कोई गहन चिंतन नहीं, कोई पाप का भय नहीं, परलोक की चिंता नहीं। और मैंने अभी जो दाखिले दिए, रात को सोफे पे बैठे बैठे ढल जाओगे तब क्या होगा? Live for the best, ready for the worst। बार बार कहता हूँ, ठीक है, हमारा पुण्य सजग रहे, हम हंसी खुशी से जीवन बिताए, हमारा सब ठीक ठाक रहे, ऐसी भावनाएं पुण्य जोर करता है तब ठीक रहे। कोई दुखी हो ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकते, लेकिन रेडी फॉर द वर्स्ट। आज जितने भी दाखिले हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई देते हैं, वो सभी दाखिले की पूरी संभावना हमारे ऊपर भी है कि नहीं है? कितने दाखिले रोज बरोज के दुनिया में देखते हैं। हमारे एक भक्त थे, बहुत रुष्ट पुष्ट, नाखून में भी रोग नहीं, रातों रात कैंसर डिटेक्ट हो गया। मैंने अभी बोला 30 साल की बहन, कितनी खुशनुमा,
3 साल के बेटे का सेलिब्रेशन हो, कितनी खुश होगी रात को, बस 1 सेकंड में ढल गई। आज वेंटिलेटर। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, जितने दाखिले आप रोज बरोज की दुनिया में देखते हो, यहाँ उंगली करके आत्मा को बोल दो, मेरे लिए भी ये असंभव है कि नहीं है? कितने एक्सीडेंट, कितने कैंसर, कितने अटैक, लेकिन हम इतने निष्ठुर हो गए। उनको हुआ है ना, हमें क्या है? बस बात फिनिश। दुखमय, दुख रूप और दुखानुबंधी ये संसार है। निजात पाने के लिए आत्मा तरफ दृष्टिपात करो। आत्माનું હિત થાય, આત્માનું કલ્યાણ થાય, આત્મા નિર્મળ થાય, કર્મો ઓછા થાય, એનું એક લક્ષ્ય રાખી અને વિશુદ્ધ સાધના દ્વારા તમારા જીવનને સાર્થક કરવાનો પ્રયાસ કરો। આવતીકાલે સવારે 7:15 વાગે અમારો વિહાર છે, 2 દિવસ મણિનગર છે, ત્યાં દીક્ષાર્થી બહેનનો